Assalamu alaikum. Thank you all of you to watch this video. In this video I will tell you about the third law of the thermodynamics. In this law you will learn about the entropy. First of all, what is entropy? You know that the entropy is the disorderness or randomness of a system. It's called entropy. The next definition is the measure of amount of energy of a system that unable to do work. Now third law says that the entropy of all substance approach to zero as temperature approach to zero. All substance have zero energy at absolute zero. The entropy of a pure crystalline substance is zero. Now I will give you example. Consider a box which have some atoms 1, 2, 3, 4 and 5, 6, 7, 8. This is the arrangement of numbers like their same disorderness in the system. Now we will shake this box and drop from ground. These atoms are shake and disorderness in the system. Now we cannot regain its system into its original size and original orderness. This is the entropy of a system which decrease disorderness, and we can never recover through a natural process. This is an entropy, and the third law of entropy: substance are at zero temperature can never. Consider another example for entropy. High temperature reservoir 200 Celsius and low temperature reservoir is 100 Celsius. Now both systems are connected with each other and the temperature will move such like that, and the temperature after some time the thermal equilibrium attained and the system will be 155 degree, because the system of temperature change from one system to another system that heat energy but unable to do work because arrangement of now because single reservoir and not more for heat engine. The measurement of amount of energy of system that is unable to do work is called entropy. Now if we take another example, thermal property of a system that remain constant during adiabatic process. Adiabatic process means energy cannot be transferred from one system to another system. Now this is the entropy, and the entropy is which is most important in the third law. कंसिडर एग्जांपल लेते हैं कि एक कंटेनर है और इसके अंदर कुछ एटम्स हैं, ठीक है, एंट्रोपी के लिए। अगर इस एटम्स को शेक करें और वो अपनी ऑर्डर को डिसऑर्डरनेस में चेंज होते जाएं तो हम उसको अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकेंगे, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस ऐसा है कि हम उसको ऑर्डरनेस को डिसऑर्डरनेस में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको वापस इस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते, वो एंट्रोपी होगी। कंसिडर करते हैं कि इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर कंसिडर करें कि एक एटम है, उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सम लाइक दैट, और इसके अंदर जब हम हीट करते हैं इसको, ठीक है, इसको हीट अप करते हैं तो ये एटम जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप से मूव करना शुरू हो जाएंगे। ये इनकी रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस की वजह से कोलिजन करेंगे एटम्स इनके वॉल के साथ। नाउ इफ़ यू रिमूव द हीट, अगर हम इसको हीट को रिमूव करें और इसको कूल करना शुरू करते हैं, जब हम ये एटम्स कूल हो जाएंगे तो अपनी जगह से नहीं मूव नहीं करेंगे, तो इट मीन्स दैट द प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में आएंगे और ये क्रिस्टलाइन एट जीरो टेम्परेचर। नाउ दिस इज द थर्ड लॉ फॉर थर्मोडायनेमिक्स। नाउ एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर द सब्सटेंस एट जीरो केल्विन। सो टेम्परेचर ज़ीरो होने की वजह से ये अपने जगह से मूव नहीं करेंगे एंड नॉट कोलिजन ड्यू टू द अदर एटम्स। तो ये जो एटम्स हैं आपस में ज़ीरो टेम्परेचर पे प्योर क्रिस्टलाइन की फॉर्म में रहेंगे और ना इस पे कोई एटम्स दूसरे एटम्स से की जगह रिप्लेस कर पाएगा। तो इस तरीके के थर्मोडायनेमिक्स के यूनिवर्स में ऐसे सिस्टम जहाँ पर एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर सब्सटेंस जो है वो इसकी एंट्रोपी भी ज़ीरो हो और उसकी एनर्जी एट ज़ीरो, एब्सोल्यूट ज़ीरो, और वो एनर्जी ज़ीरो होने की वजह से प्योर क्रिस्टलाइन की फॉर्म में होते हैं एटम्स। और जो है इसके जो दूसरा जो हम एग्जांपल लेंगे इसके लिए कि एट एब्सोल्यूट ज़ीरो केल्विन टेम्परेचर थ्योरेटिकली ऑल मोड ऑफ मोशन स्टॉप, जैसे नो वाइब्रेशन, नो रोटेशन एंड नो ट्रांसलेशन मोशन। एटम्स नो ट्रांसलेशन मोशन भी नहीं करेंगे और
इसकी जो है रैंडम मोशन भी नहीं होगी। तो इट मीन्स दैट टेम्परेचर ज़ीरो होने की वजह से, जैसे आप एग्जांपल ले लें कि आइस से और एक वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा मूव करेंगे और आइस जो है वो प्योर क्रिस्टल की फॉर्म में आएगा, तो उसके एटम्स जो हैं वो एक दूसरे की रिप्लेस जगह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से कम होगा। तो एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम वेनिश एट स्टेट दैट, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से इसकी जो है वो एटम्स की वाइब्रेशन भी कम हो पाएगी। तो दिस इज थर्ड लॉ सेज टू अस दिस। नाउ थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ वी विल give examples of zeroth law next video.